Dear students, welcome to A1 Blom Education YouTube channel. ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ A1 ବ୍ଲମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ ପୋଏମ୍ ବିଷୟରେ। ଆଜି ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ ପୋଏମ୍ର 50 ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୋ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛ, ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। This is your channel A1 Blom Education. ତେଣୁ ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍? ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ କବିତାର କବି କିଏ? ତାହେଲେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ କିଏ? ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍, ହେଲା। ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍। ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ କହନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ ସେ ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ, ହେଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ ଆସିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିପର୍ ଡୁଇଂ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ତାହେଲେ କବିତାରେ ଏ କବିତାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିରିକ୍। ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ସେ ଗୋଟେ ୟୁଲୋଜି। ଏ କବିତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିରିକ୍, ହେଲା, ଗୀତି କବିତା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିପର୍ ଡୁଇଂ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ତାହେଲେ କବିତାରେ ଧାନ କାଟୁଥିବା ଝିଅଟି କ'ଣ କରୁଛି? ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ କଟିଂ ଗ୍ରାଇନ୍। ସେ ଗୀତର ଦ ପୋଏଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ସଙ୍ଗ୍। ସେ ଗୀତର ଅର୍ଥ କବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଭେରି ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍, ବହୁତ ସୁମଧୁର ଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ରିପର୍ ୱାର୍କିଂ? ତାହେଲେ ଧାନ କାଟୁଥିବା ଝିଅଟି କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲା? ଭ୍ୟାଲି, ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଫରେଷ୍ଟ। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହେଲା। ସେ କ୍ଷେତରେ, ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିବା କ୍ଷେତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନା ଧାନ କାଟୁଥିଲା, ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିଲା। ଦ ରିପର୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍? ଝିଅଟିକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିପରି ଥିଲା, ତା ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ୱେଆର୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗର୍ଲ? ଝିଅଟି ତ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଆସ୍କ ଦ ପାସର ବାଇ ଟୁ ଡୁ? ପାସର ବାଇ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ବାଟୋଇ, କବି ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ସି, ଷ୍ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିସନ୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍, ହେଲା। ପାସର ବାଇ କହିଲେ ବାଟୋଇ, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ରିପର୍ ଫିଲ୍ସ? ତାହେଲେ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ଝିଅଟିର ଗୀତଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରିଦେଇଥିଲା? କେଉଁ ସ୍ଥାନଟିକୁ? ନା ଭେଲି, ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଉପତ୍ୟକାରେ ଧାନ ଓ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିଲା। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି, ଦ ଭେଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7କୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ବାର୍ଡ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍? ତାହେଲେ ତୁଳନା କଲାବେଳେ କବି ଗୋଟେ ପୋଏଟିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର, ସିମିଲି। ମୁଁ କହିବି ସିମିଲି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଅଛି, ହେଲା। କବି କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅର, ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ଝିଅର ଗୀତ ସହିତ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍? ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା, ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ କାହା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ? ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଅଛି ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ ଡେଜର୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ମର୍ସ, କିଙ୍ଗସ୍,
चिल्ड्रेन। यह राइट आंसर हम ऑप्शन ए ट्रैवलर्स इन डेजर्ट लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच बर्ड इज आल्सो मेंशन्ड। यही कवितारे अन्य गोटे पक्षी विषय मध्य कवि कहिसंती से पक्षीटी किए ऑप्शन बी कुकू है। क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा द कुकू सॉन्ग ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ ताले कोइलीर गीत कहार नीरवता को भंग करि थाए। यार राइट आंसर पिला माने आम डिस्कस करछु कवितारे ऑप्शन सी द सीज अमंग द फार्देस्ट हेब्राइड्स। ताले दूर रे थिबा जो द्वीपपुंज मानकरे समुद्र निकटस्थ जो द्वीप रहुछि से द्वीपपुंज रे थिबा लोक मानक नीरवता को भंग करि थाए। कहार गीत ना कोइलीर गीत। व्हाट डज द पोएट नॉट अंडरस्टैंड ताले कवि कौन बुझी न पारंती कौन बुझी पारले नहीं। झीटी जिते क्यों भाषा गीत गाउला व्हाट द गर्ल वाज सिंगिंग इन व्हिच लैंग्वेज दैट सॉन्ग द पोएट कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट नहीं कि झीटी क्यों जो भाषा गीत गाउला से भाषा क्यों भाषा गीत गाउला कवि बुझी पारले नहीं किंतु गीतर जो माधुर्य कवि आकृष्ट हो जाते। ऑप्शन ए यार राइट आंसर। द सॉन्ग मे बी अबाउट ताले कवि भावना रे गीतटी हुए तो कौन ना ऑप्शन बी बैटल्स लॉन्ग आगो ताले अतीत रे घटी जाइथिबा युद्ध उपरे पर्यवेसित बोली कवि कहउछंती। 13 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द पोएट इमेजिन द सॉन्ग मे बी रिलेट टू ताले कवि को कल्पना रे गीतटी हुए तो कहा उपरे देखिबा ऑप्शन गुडी को कवि को कल्पना रे गीतटी हुए तो ऑप्शन बी सम नेचुरल सर और लॉस केतेक स्वाभाविक दुख किंबा काहाकू हराई थिबार अनुताप उपरे पर्यवेसित बोली कवि कहउछंती। 14 नंबर प्रश्न को आसीबा द सॉन्ग सीम्स टू हाव ताले गीतटी कहा उपरे प्रतीयमान होता कहा उपरे पर्यवेसित हो बोली जो कवि कहउछंती कौन हबार देखा जाउची गीतटी ना गीत होची एंडलेस फ्लो असीम है सीमाहीन परि बही जाउची गीतटी असरंती बोली कवि भाषा रे एंडलेस हम यार राइट आंसर ऑप्शन सी एंडलेस फ्लो। क्वेश्चन नंबर 15 को आसीबा व्हाट इफेक्ट डज द सॉन्ग हैव ऑन द पोएट। व्हाट इफेक्ट डज द सॉन्ग हैव ऑन द पोएट ताले गीत रे क्यों प्रभाव कवि को ऊपर पड़िछि ताले गीत रे सुनला परे कवि गभीर भाव रे कौन कवि को आकृष्ट करिछि तापरे मूव्स हिम द राइट आंसर विल बी डीपली मूव्स हिम गभीर भाव रे कवि को अनुप्राणित कर देछि है ना इंस्पायर करिछि गीतटी ऑप्शन सी हवर है राइट आंसर। द सेटिंग ऑफ द पोएम ताले कविताटी केउ स्थान उपरे सन्निवेष्टित बा पर्यवेसित बा कौ स्थान उपरे कविताटी को स्थानटी उपलब्ध होइछि कवितारे ना ऑप्शन बी स्कॉटलैंड जो हाईलैंड अच्छी है से स्थान उपर ही कविताटी लेखा जाइछि बा रचना करा जाइछि। मु प्रथमे ही कहूली ये कविताटी क्यों प्रकार कविता नेरेटिव पोएम ना बालाड है बालाड को नेरेटिव पोएम कहती किंतु गोटे नेरेटिव पोएम नुह है। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज दिस एट तो हूँ पोएमटा गोटे लिरिक मु कही एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू दिस पोएम इज ए लिरिक देखिबा ए लिरिक ऑप्शन अच्छी कि नहीं अच्छी है दिस पोएम इज ए लिरिक। 18 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द टोन ऑफ द पोएम ताले कवितार भाव कौन एडमेरिंग एंड रिफ्लेक्टिव हम ना कवि कहीं से झीर गीत को प्रशंसा करुछंती। द पोएट कंपेयर्स द गर्ल्स सॉन्ग्स टू कवि झीर गीत को क्या सहित तुलना करुछंती कवि झीर गीतटी को चढ़ई मानकर दुईटी पक्षी क्यों पक्षी ना कुकू आ गोटे कौन नाइटांगेल
ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀର ଗୀତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ। ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥକୁ କେଉଁ କବି କହନ୍ତି ନା ପଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 20 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିମ୍? କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପସନ୍ ବି କୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ନେଚର ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କବିତାଟି। So my dear students, if you came to this channel firstly, don't forget to like, share and subscribe. This is your channel A1 Blom Education, जहाँ फल तुम एथिरू अपलोड करा जाउଥିବା प्रत्येक क्लास रो नोटिफिकेशन गुडी को अति सहज रे पाई परिबो एवं अति सरल भाव में तुम इंग्राजी बही रो बथ इंग्लिश कम्युनिकेटिव इंग्लिश एवं ग्रामर रो सब क्लास गुडी को एथिरे अवेलेबल हैला। डिफरेंट प्ले लिस्ट क्रिएट करा जाइछि हैला। तेणु माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैविंग कंप्लीटेड द सिलेबस शेष होला परे रिवीजन क्लास मध्य तुम मानकु दिया जिवो हैला। So we all teachers are just thinking about your future, how to get good percentage, how to achieve your goal. So don't be disappointed हबार कौन सी आवश्यकता नहीं। तुम्हें क्लास गुड़ी को संपूर्ण भाव में देख एवं नॉलेज गेन कर, भल परसेंटेज रख, सो दैट वी विल बी हैप्पी। एंड इफ यू केम टू दिस चैनल फर्स्टली, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट इट विल बी an inspiration for us हैला। ताले हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। द रिपर इज डैश। रिपर कौन थिला? से शस्य काटुवा झीटी एकुटिया थिला। ए हाईलैंड गर्ल थिला, स्कॉटलैंड रो हाईलैंड गर्ल थिला। 22 नंबर को आसीबा। द पोएट लिसन्स टू द सॉन्ग। कवि गीतटी को केते समय सुनिले? बहुत समय सुनी चंदी नुहे कि फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हाट डज सॉलिटेयर मीन? पिला माने सॉलिटेयर रो अर्थ एकुटिया, निर्जन, निकांचन नुहे कि ओडिया भाषा रे। इट ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। द पोएट कैरीज द म्यूजिक। द पोएट कैरीज द म्यूजिक। कवि गीतटी को केउठी बहन करिसेंती ना हृदय रे। ऑप्शन बी। हृदय रे बहन करिसेंती नहीं कि। जीवा वर्तमान क्वेश्चन नंबर 25। द सॉन्ग इज डिस्क्राइब्ड एज। ताले गीतटी केउ अर्थ मु तो कहिछि। गीतटी एक दुखदायक गीत, मेलानकली एंड स्वीट, दुखदायक किंतु माधुर्यपूर्ण गीतटी थिला। ऑप्शन बी है राइट आंसर। वर्तमान आमर प्रश्न आसिला गोटे पोएटिक डिवाइस बा लिटरेरी डिवाइस बा ओडिया कौन कहती ना अलंकार उपरे प्रश्नटी। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन वर्ड कंपैरिजन। जिते बेले आम आज लाइक पिला यूज करूछु है, कंपेयर करूछु, आज लाइक यूज करूछु, सेते बेले केउ अलंकार हुए ना सिमिली। एठी मेनली सिमिली व्यवहार होइछि। आहरी अनेक गुटे पोएटिक डिवाइस अछि, मु से गुडी को मध्य तार पर्टिकुलर गोटे क्लास नेबी है। ए राइट आंसर होची सिमिली। आ जोठी आइज लाइक यूज हेबनी से होची मेटाफर है। भेल प्रोफाउंड मीन्स। भेल प्रोफाउंड अर्थ होची पिला माने गभीर भाव रे जो उपत्यकार प्रभाव पकाइला गीतटी और गीतर जो भाव उपत्यका चारिआडे खेली गला ताकू कहउची भेल प्रोफाउंड। तेणु ए राइट आंसर हो ऑप्शन ए डीप वैली। द पोएट सजेस्ट वी शुड। कवि उपस्थापना करुछंती कौन कहउछंती ना हे झीटी को प्रशंसा कर, रेस्पेक्ट हर सॉलिट्यूड, तार निर्जनता को प्रशंसा कर हैला। व्हाट इज द मूड ऑफ द सॉन्ग। गीतर अवस्था कौन? गीतर केउ प्रकार गीत थिला ना सैड एंड मिस्ट्रियस। सैड एंड मिस्ट्रियस, दुख एवं कौन दुखपूर्ण एवं विचित्र थिला गीतटी। प्रश्न आसला कवितारे केतोटी स्टांजा अछि। द पोएम हैज हाउ मेनी स्टांजास? 4टी स्टांजा अछि हैला।
प्रत्येक जिनस को लक्ष्य करिया पड़ियो। द रिपर इज कटिंग, कौन काटुला झीटी? शस्य काटुला नुह कि ग्राइन। क्वेश्चन नंबर 32, द पोएट स्टैंड्स, कवि ठिया होइतिला कौन करुतिले? ऑप्शन बी हो राइट आंसर, वाचिंग एंड लिसनिंग क्विटली। क्वेश्चन नंबर 33 को आस पिला माने, द सॉन्ग इकोज इन डैश, गीतटी केउं स्थान रे प्रतिध्वनित हेउथिला? ऑप्शन ए उपत्यकारे। द पोएट इमेजिन्स थीम, कवि से गीतर अर्थ को कल्पना करुछन कौन पाई? ना तांकर अनुग्रह अभिलाष इच्छा थिला जानिबा पई गीतर अर्थ, किंतु गीतर अर्थ से बुझी पारिलेनी। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्यूरियोसिटी, हैला आग्रह। द गर्ल कंटिन्यूस सिंगिंग, झीटी अविरत भाव रे गाई चलीथिला। केमिति गाउथिला गीतटी? एंडलेसली गाउथिला नहीं कि एंडलेसली, असरंती भाव रे, सीमाहीन भाव रे, असीम, जो गीतर अंत नथिला। द पोएम सेलिब्रेट्स, तारे कवितारे कहा उपरे पर्यवेक्षण करा जाइछि? ना नेचर एंड ह्यूमन इमोशन। एठी नेचर लाइक दैट नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस क्लास नियर बाय ए वेरी ब्यूटीफुल एरिया व्हेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ। मुझे वर्तमान बसिकी तुम क्लास नेउछि, दैट एरिया इज आल्सो लाइक दैट एरिया, है से नेचर एरिया पाखरे मु बसिकी तुम क्लास टी एक्सप्लेन करूछि, है ना। तेणु एटा हम नेचर एंड ह्यूमन इमोशन। तापर आसीबा 37, द गर्ल डज नॉट नोटिस, झीटी क्या लक्ष्य कर न थाए? ना कवि गीतटी शुणुले बट द गर्ल डज नॉट नोटिस दैट, किंतु झीटर लक्ष्य नथिला। 38 को आसीबा, द पोएट फील्स, कवि कौन अनुभव करिसंती? गभीर प्रशंसा करिसंती झीटी को। ऑप्शन बी डीप एडमायरेशन, हैला गभीर प्रशंसा करिसंती। द सॉन्ग रिमेन्स विथ हिम, ताले गीतटी कवि हृदय सबुदिन रही नुह कि फॉर एवर इन मेमोरी। द पोएम बिलोंग्स टू, कविताटी को साहित्य उपर पर्यवेसित? मुझे तो कही एट द बिगिनिंग कवि भी जड़े पोएट ऑफ नेचर, आउ से जड़े रोमांटिक पोएट माने रोमांटिसिज्म हम। ऑप्शन ए यार राइट आंसर। द रिपर्स वॉइस, ताले शस्य काटुथिबा झीटीर स्वर किपरि थिला? ऑप्शन बी स्वीट एंड मेलोडियस। द पोएट यूजेस इमेजिनेशन, ताले कवि निजे कल्पना करुछंती कौन? गेस मीनिंग ऑफ सॉन्ग, ताले गीतर अर्थ बुझिया से चेष्टा करुछंती, जानिया से चेष्टा करुछंती। द वर्ड प्लांटिव, प्लेंटिव अर्थ कौन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेंटिव? प्लेंटिव अर्थ हूँ दुखदायक, जंत्रणादायक, है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी सैड एंड मोर्नफुल। 44 नंबर को आसीबा, द रिपर वर्क्स, ताले शस्य काटुवा झीटी केउठी काम करुथिला? केउं स्थान रे किपरि? समस्त थिले कि ता पाखरे केही नथिले, से एकुटिया काम करथिला? ऑप्शन बी यार राइट आंसर। द पोएट फाइनाली, शेषरे कवि चली जाइछंती किंतु गीतटी तांको हृदय रे रही जाइछि। ऑप्शन बी लिव्स बट रिमेंबर्स सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 46, द पोएम शोज पावर ऑफ, कविताटी कहार शक्ति को प्रतिपादित करुछि? संगीत एवं प्रकृति, है। ऑप्शन बी म्यूजिक एंड नेचर। सुंदर प्रश्न गुड़िक पिला माने समस्ते देखिबो, है। एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट हो, डोंट वरी फॉर योर एग्जामिनेशन। पुणी मु क्लास नेबी, पुणी रिवीजन क्लास दिया जीवो, है। द रिपर रिप्रेजेंट्स, ताहले शस्य काटुवा झीटी क्या सूचित करिछि, कहा ऊपर उपस्थापन से करुछि? ना ऑप्शन बी सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ, सरलता
एवं ग्राम्य जीवनर सौंदर्य उपरे पर्यवेसित। 48 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। द पोएट्स रिएक्शन इज, कविंकर प्रतिक्रिया कौन जात होइथिला? कवि आश्चर्य होइथिले एवं झीटी को प्रशंसा करथिले। ऑप्शन बी वंडर एंड एडमिरेशन। 49 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। द सॉन्ग अफेक्ट्स द पोएट, ताहले गीतटी कवि को किपरि भाबरे अनुप्राणित करिछि ना आवेगपूर्ण भाबरे? ऑप्शन बी इमोशनली डीपली। सो लास्टली इवेंचुअली माय डियर स्टूडेंट, शेष आम देखा 50 नंबर प्रश्नटी। द पोएम एंड्स विथ, कविताटी किपरि शेष होइछि? कविताटी सबुदिन कवि हृदय में रही जाइछि, नहीं कि वर्थ रिमेम्बरिंग ही जाइछि, रही जाइछि सबुदिन। कवि आ कविताटी को भूली पारि नाहंती, गीतटी भूली पारि नाहंती। से झीटी जो गीत गाइछि, हुई सॉन्ग दैट गर्ल सैंग मेलोडियसली, जो गीतटी से झीटी गाइछि है सुमधुर भाव में गीतटी कवि हृदय में सबुदिन रही जाइछि। तेणु ऑप्शन सी सॉन्ग रिमेनिंग इन हिज हार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, so this much for today, and don't forget to like, share and subscribe. This is your channel A1 Plum Education, and I am your Karthik sir. I am always hoping for your best. God bless you. Have a nice day.